Day 2019 is Healthy Diets for Zero Hunger, so environmentally sustainable. FSSAI's initiative. This year's theme is healthy diet. I extend a very on this occasion. We are particularly delighted Dr. Harshvardhan with us. Dr. Harshvardhan joined as the health minister in the Indian Union was an engagement with the Food Safety and Standards Authority of India, both in consulting and as a part of the government. So we are delighted to have you with us. We'll also be joined by Mr. K. Subramanian, the Chief Economic Advisor. On this occasion, we are also joined by the students and faculty from over 60 colleges. It has a simple philosophy. If it's not safe, it's not food. If it's not healthy, it's not food. And if it's not good for the planet, it's not food. India is now the diabetes capital of the world, in addition to high undernutrition and deficiencies such as address the mounting crisis. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, is taking the lead by launching Eat Right India. FSSAI continues to set and enforce food safety standards, but its role has evolved from a regulator to enabler as well. Its new approach integrates safety, health, nutrition, and the environment more consciously and visibly. But molding the food habits and lifestyles of 1.3 billion people across countless cuisines and cultures can't be done by FSSAI alone. So it's taken every possible stakeholder along: citizens, artists, restaurants, media, food producers, corporates, and development agencies. For behavior change to occur at a mass level, it can't be imposed. It has to come from within. Understanding this, the campaign features a new language and user-friendly symbols to nudge people. Eat Right India encourages every collaborator to be a leader. Food producers are reformulating products, providing better nutritional information, and investing in healthy food. Thousands of professionals are committing themselves to ensuring that people eat right. We try and make those street food snacks and make it a bit more lighter, less in fats, less in calories, but absolutely delicious. Over 200 places of worship have collaborated to design Bhog, a scheme for blissful hygienic offering to God. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आपके बढ़ने से हमारा फूड का क्वालिटी मेंटेन होगा. It will definitely help us improve the standards of the kitchen. ये हर जगह पूरे बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में होना चाहिए. Oil companies under the Petroleum Ministry are rolling out RUCO, a system for converting used cooking oil to biodiesel. To sustain a movement, constant innovations are needed. And so, clean fruit and vegetable markets and clean street food hubs are being created. Eat Right campuses are becoming mini ecosystems where healthier food choices are being made and offered on menus. State-of-the-art food testing laboratories are being established, and campaigns to minimize food and plastic waste are being rolled out. Plastic recycling is the leading job. We are in a situation where we need to act right now. To strengthen behavior change, online Eat Right platforms are being used to train frontline health workers. And IEC creations like an Eat Right merchandise store and a fun quiz complete Eat Right India's 360-degree approach. Decades ago, the Indian freedom movement was launched by Mahatma Gandhi, a figure deeply respected for his commitment to healthy eating and living. Eat Right India hopes to ignite a similar mass movement for health. The Swasth Bharat Yatra, a pan-India cyclothon, was a crucial awareness campaign to inspire citizens to take charge of their own diet and health. महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के ऊपर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो गए. इसी कड़ी में FSSAI ईट राइट इंडिया अभियान के अंदर
खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में लगा। Changing food and lifestyles on such a grand scale can feel daunting, but stakeholders at every level are gearing up to drive this movement. The states are ready to take the torch that has been laid with the movement. Their leadership will be crucial to success at the national level. The dream is that Eat Right's message will resonate with everyone in the country and indeed across the globe. Eat Right for a better life. Has different elements. Eat Right India's logo has a story, and this story comes alive. That the 6 colors in the periphery show the various proportions of food we should be taking. Yellow for pulses and cereals, which we should take sufficient quantities, fruits and vegetables as much as possible. Meat, fish and poultry less, milk and milk but perhaps as international appeal. So various components of the 3 elements that I mentioned to you are different approaches of who will benefit. The extension workers go around and do extension activities. Eat Right is a key element of that, and that we have in schools we are trying to mainstream it with the school curriculum. So mainstreaming, convergence, partnership, and a wide range of rich content that we have created, both print media and also digital media, is now available to give life to the Eat Right India program. With a large population and a huge potential for food businesses to grow and prosper. As per the World Bank's report on ease of doing business, India stands on the 77th position. Our Honorable Prime Minister of India envisions to take this ranking even higher to the top 50. To strengthen his mission, Food Safety and Standards Authority of India is adopting a paradigm shift in its approach. From being just a compliance regulator to being an enabler for the food safety ecosystem. The major part of the food business sector is unorganized, and thus a holistic approach needs to be taken to strengthen not only the big FPOs, but small FPOs and food vendors as well. To enable this food safety ecosystem at ground zero level, FSSAI is launching a new initiative, Food Safety Mitra. This initiative will engage motivated individuals who will be certified as Food Safety Mitra. These Mitras, the role of a motivated individual in enabling the food safety can be a game changer. A Food Safety Mitra will have 3 avatars: Digital Mitra, Trainer Mitra, and Hygiene Mitra. Digital Mitra. The Digital Mitra shall assist the FPOs in their compliance on online portals of FSSAI. Trainer Mitra. Trainer Mitra will be a person duly trained and certified by FSSAI to train FPOs regarding the Food Safety Act, regulations, and implementation. Hygiene Mitra. To attain the goal of hygiene and safe eating throughout India, Hygiene Mitra shall audit hygiene of FPO outfits and help them with implementation of hygiene guidelines. The Mitra initiative will also create a self-employment opportunity for the youth of the country. Around 50,000 entrepreneurs are expected to join Food Safety Mitra initiative. Through services such as licensing, registration, hygiene rating, and food safety training, we estimate that more than 25 lakh FPOs will be engaged and thereby help in creating an ecosystem of capacity building along with employment generation. Using a layered ecosystem responsive to the need of FPOs, the Food Safety Mitra scheme aims to create a last-mile, self-driven and self-employed compliance structure that complements the efforts of FSSAI and the state food authorities. We welcome everyone to join this program.
Further details are available on the Food Safety Mitra portal. Yes, whenever we will go to the quality of sample, we will wear this, and it will have RFID tracking system and camera also. Yeah. To be part and parcel of Ministry of Physical Development. This is the only organization registered as a society, as a company, which looks after the working standards and the food standards and all types of skills concerning the domestic workers in India. Who work at their home from morning to the night, whether it is cooking the food, purchasing the food, or taking care of their homes, and those who want to do a lot, but they are unable to find a medium. FSSAI has launched a basic code for the homemakers and domestic workers. In collaboration with Domestic Workers Sector Skill Council, with the help of this course, you will get to learn about personal hygiene, kitchen handling, food storage, food handling, housekeeping, waste handling. This course will give you information about everything that you need to manage your home so that you can become a smart homemaker and a domestic worker. Plastic bags from the retail store. And normally these plastic bags take around 400 years to decay. So we came out of to introduce in India also. And I'm so thankful to CEO Mr. Pawan Agarwal. The highlight of these bags are that when you go to the shopping mall, you leave this bag for washing. And entire washing and repairing will be done by a company called Lindstrom. There can be a similar company also doing the same activity. But then you don't need to buy every time a bag. Is First 1000 Days of Nutrition, a short TVC starring Ms. Juhi Chawla on good key 5 steps for a healthy diet for newborns till 2 years of age. हल्की खुशियाँ मिलेंगी, शरीर, दिमाग, पढ़ाई, रोजी रोटी, सब कुछ। दूसरी गुड न्यूज़, इन खुशियों की नींव एडवांस में भी बन सकती है। होने वाली माँ को पौष्टिक खाने, आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ और नियमित डॉक्टरी जांच से। तीसरी बात, ऊपर वाला हमारे टीम में है, तभी तो हम लेते ही पहला टीका दिया। घंटे भर में माँ का पहला दूध पिलाइए। नंबर 4, आपको मिलावट से बचने की बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, नो पानी बूंदी, नो बोतल का दूध, नो मिलावट। और 5वीं बात, 6 महीने पे पार्टी, खिचड़ी, सब्जी, फल सब शुरू। प्लस माँ का दूध 2 साल तक, और छोटी माँ का जीवन भर की खुशी। है ना गुड न्यूज़? तो बताइए सबको। अरे रुको, खाने को एक ही तेल में बार-बार तलने से पहले रुको। ये आपकी तंदुरुस्ती और वातावरण दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे तेल से आपको कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तेल को कई बार फिर इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है, जलाया जाता है या नाली में बहाया जाता है। पर अब रुको, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना में इसी तेल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसलिए रुको, जिससे आप और आपका वातावरण दोनों फिट रहे। Author
how Gandhiji's revolutionary movements like Salt Satyagraha and fasting. Understand how Mahatma Gandhi inspired the Eat Right India movement and what it means to follow the Gandhian philosophy through. An initiative of FSSAI is introducing an easily accessible platform to ensure safe collection and distribution of surplus food through Indian Food Sharing Alliance, a network of food recovery agencies. This will bridge the gap between government, recovery agencies, and available on IBM and mobile app. The platform will have features like donor and food recovery agency location management, activity measurement, food recovery mix, and distribution. Call at the toll-free number and donate now to the need. Speech mentioned the fact that food is a complex system. It has so many stakeholders. The Eat Right seeks to do is to bring about transformative change in our diets and towards, in some ways towards safer and healthy diets. To explore this in its entirety, that this program has followed, to try and understand and make sense of this and explore its dimensions, I think you virtually written the book on this. Your last book was called Transforming Systems, beside an issue of that kind. Could you just give us a sense of how should one look at Acharan, their behavior? Yad Acharan Shreshtatah, Tat Tat Eve Taro Janah. The others basically follow them. Sayat Pramanam Kurute. Praman, it is not just basically the talk, but the actual proof of action that these people provide. Sayat Pramanam Kurute Lokas Tat Anuvartate. This shloka, in my opinion, actually captures the essence of nudge. And what we've tried to elucidate in the chapter is 7 core principles that must be applied in trying to nudge. For instance, messaging, the way we message. Couple of ads that came actually that I saw. Very nice examples of how the messaging can be done for eating right. And here's where what I want to urge all our policymakers to think about is what struck me when I was learning behavioral economics is the enormous potential for it to be applicable in India. Why? Because we're an extremely old civilization. Our behavior is driven so much by norms, be it social, cultural, or even spiritual. For instance, in the economic survey, we talked about actually about Beti Bachao, Beti Padhao, and about Badlav, which is basically saying Beti Aapki Dhan Lakshmi or Vijay Lakshmi. And the concept of Ardhanarishwar. These are, for people, some of us, these may seem like, these are religious concepts, but for the common person, I having come from a very humble background when I was young, actually, I can relate to that common person very, very well. For that common person, actually, Ardhanarishwara is something, we can use. There's enormous potential to be able to use some of these ideas. For instance, I asked this question to many of my friends, saying, has anybody encountered a person called Shankar Uma? Anybody here who's encountered a person with the name Shankar Uma? I guess not. But you would have encountered many persons with the name Uma Shankar. Similarly, have you seen a person Raman Janaki? No, you would have seen Janaki Raman. Now, these are examples of the kind of ideas that is there very much at our tips, actually, and in a very relatable way. And in fact, if I think about it, why is it possibly that this chapter related to a lot of people? Because this is something that most of us grow up, when we are young. बहुत बधाई है पवन जी को और उनकी पूरी टीम को। बहुत सारे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हम लोगों ने आज स्टार्ट किए हैं और सुब्रमण्यम जी और अरुण जी और संतोष जी की मदद से एक बहुत सुंदर डिस्कशन भी यहाँ पर हुआ है, which is I think quite motivating also. इस डिस्कशन से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण
इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। और जो ईट राइट इंडिया मित्र की हमने योजना बनाई है, चीज़ों को हम इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक हेल्थ मिनिस्टर के लिए किसी देश में ईट राइट इंडिया का कैंपेन और फिट इंडिया का कैंपेन ये ग्रो करना शुरू हो जाए और इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो समाज में बढ़नी शुरू हो जाए, तो किसी भी हेल्थ मिनिस्टर के लिए उससे ज़्यादा कोई संतोष या खुशी की बात नहीं हो सकती है। जो कुछ पवन जी हम आज ईट राइट इंडिया में करते हैं और जो सिखाने की कोशिश करते हैं, मैंने 15 साल पहले पांचजन्य अखबार में लगातार 2 साल तक इसी के संदर्भ में एक सीरीज़ लिखी थी। तो आज मैं कल बल्कि उसको खोल के निकाला, देखा, मैंने तो देखा कि इतनी सारी चीज़ें उस समय, और उस समय पांचजन्य अखबार के लोग मुझे कहा करते थे, उसके एडिटर तरुण विजय, कि ये जो आर्टिकल्स आप लिखते हैं, बेसिक बातें हम लिखते थे फूड के बारे में, और क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्या कैलोरिक इंटेक होता है, क्या फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट, ये सब चीज़ों का क्या रोल है, और कैसे सब चीज़ें आप बैलेंस करके अगर खाएं, ये बातों का ध्यान करें तो आप केवल फूड को ही ठीक, अपने संतुलित और ठीक रख के 100 साल तक विदाउट एनी दवा के आप ठीक रख सकते। तो देयर वाज सो मच ऑफ इंटरेस्ट अमंग्स द रीडर्स। तो मैंने ये चीज़ अप्रिशिएट की कि जो चीज़ लोगों को सीधे सीधे लाभ करती है, वो चीज़ उसको वो बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। इसलिए ईट राइट इंडिया का जो कैंपेन है और जो फिट इंडिया कैंपेन है, ये दोनों अपनी सफलता की चरम सीमा तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं इफ़ वी यूज़ द राइट स्ट्रैटेजी। और अभी यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में भी बात हुई है और बिहेवियरल चेंज के बारे में बात हुई है, और साधारण लोगों ने नहीं की। एक प्लानिंग कमीशन में जिन्होंने सारे देश के लिए प्लानिंग किया सिस्टम्स का, और फिर सिस्टम्स के अंदर सब कुछ अच्छा प्लान करने के बाद भी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका उन्होंने अपना अनुभव बताया, और उन्होंने अपनी दादी माँ से लेकर और आज तक के सब तरह के अनुभव जो है शेयर किए सुब्रमण्यम जी ने। तो मुझे अच्छा लगा कि ऑडियंस भी बहुत ध्यान से, गहराई से सुन रही है। ईट राइट इंडिया के तो कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े मैसेज नहीं हैं, सिर्फ लोगों को एक बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उनके लिए क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, बट उसके बावजूद भी जैसा कहा कि सुबह वो दबा देते हैं अलार्म को, जो है रात में जो है डिटर्मिनेशन परफेक्ट होती है, सुबह सुबह जो है फिर आलस आ जाता है, इनर्शिया आ जाता है, या कई बार जो है वो ऐसा खाना सामने दिखता है तो फिर सलाइवेशन होने लगता है, और हम फिर अपने, किसी ने पुराने ग्रंथों में लिखा है कि हम कई बार ये 2.5 इंच की ज़बान के चक्कर में अपने दांतों से अपनी कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। तो हम तो ऐसे डॉक्टर भी समझते हैं कि ये जो 2.5 इंच की जो ज़बान है, इसका जुडिशियस और बहुत ही मेटिकुलस तरीके से बढ़िया इस्तेमाल किया जाए तो सब तरीके से अच्छा है।
ये ज़बान कई बार फिसल जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। इसका ठीक तरह से ठीक वर्ड्स को भी निकालने के लिए इसको सही तरीके से यूज़ करना पड़ता है। स्पीच का भी ठीक आर्टिकुलेशन हो, सब बातों के लिए जो है ऑर्डर ऊपर से ठीक आ रहा है, लेकिन ज़बान अगर गड़बड़ कर जाए तो इसलिए थोड़ा सा सारी चीज़ों को, और अगर ईट राइट इंडिया में तो आप देखें तो बहुत लंबे चौड़े संदेश नहीं हैं। संदेश क्या है, जैसे हम लोगों ने भी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की कि भाई थोड़ा थोड़ा ही कम करना है शुरुआत के लिए, थोड़ा सा घी कम करना है, थोड़े से चीनी कम करनी है, थोड़ा सा नमक कम करना है, थोड़ा खाना भी कम खाने की आदत डालनी है। और मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इस तरह की आदतें भी हम अपनी सुधारना शुरू करें कि थोड़ा सा बाहर खाने की आदत को भी कम करना है। और मैं तो इसके साथ ये भी जोड़ता हूँ कि बाहर जाना है तो अगर घर से खाना खा के जाए आदमी तो बाहर ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर सकता है। जैसे आपको पार्टी पे जाना है रात को, तो अगर 7:30 बजे घर से खाना खा के आप गए तो हेल्थ के लिए भी ये बहुत लाभकारी होता है कि आपका जो लास्ट मील होता है और जो फर्स्ट मील होता है अगले दिन का, उसके बीच में अगर 12 घंटे का फासला है तो बहुत आइडियल है। वो आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न भी करता रहता है, आपके बहुत सारे, अब उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस में हम नहीं जाते तो सब्जेक्ट थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन 7:30 बजे घर से खाना खा के गए अगर, या दिन में भी कहीं जाना है घर से खाना खा के जाएंगे तो वहाँ पार्टी पे, अभी अगर मान लीजिए ये सारे लोगों को ये टेंशन ना हो कि इसके बाद जो है यहाँ पर खाना खाना है, मान लो ये खाना खा के आए होते तो वो जो समय बाद में बिताना है वो 20 लोगों से बहुत अच्छी तरह मिलने में बिता सकते हैं। खाना खाने में क्या होगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, प्लेट लेने के लिए समय लगाना पड़ेगा, खाना उठाने के लिए समय लगाना पड़ेगा। और जब 25 चीज़ें रखी होती हैं तो हमने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको पता है कि फालतू खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उनको ये भी पता है कि जितना मैं प्लेट के अंदर लगा लूँगा ये सारा मैं नहीं खा पाऊँगा, फिर भी दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन, और वो सारा कुछ लगाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि ज़्यादातर बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, ऐसा नहीं उनकी दादी माँ ने नहीं बताया, उनकी दादी माँ ने भी आपकी दादी माँ की तरह बताया था, लेकिन वो जो है फिर उसको वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके जो प्लेट में खाना वेस्ट होता है, खाने को जो एक्स्ट्रा आप परोस लेते हैं, उसके लिए ये आपके जो वॉलंटियर हमने बनाए हैं, जो NGOs इन्वॉल्व हुए, वो उस फूड को नहीं यूज़ कर सकते, और ना वो फूड को, झूठे खाने को किसी को आपको बांटने का या खिलाने का कोई आपको अधिकार है, वो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो बातें तो लंबी चौड़ी नहीं हैं, और आजकल अब स्टडीज़ कई किस्म की आ रही हैं। अभी तो वेजिटेरियनिज़म का मूवमेंट जो है वो सारे दुनिया में ग्रो कर रहा है, और बहुत सारे कैंसर्स जो है वो नॉन वेजिटेरियनिज़म के साथ एट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये बैलेंस्ड फूड जो है, संतुलित आहार, ये तो मेरे ख्याल से दूसरी, तीसरी, चौथी के चैप्टर में होता था। कोई किताब ऐसी नहीं होती थी बचपन में प्राइमरी स्कूल के अंदर जो संतुलित आहार को नहीं पढ़ाती थी, जो ये नहीं बताती थी कि हरी सब्जियों का क्या रोल है, फ्रूट्स का क्या रोल है, फाइबर का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो है, भाई बॉडी जब बनने का समय होता है, मसल तो थोड़ा प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फैट से क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें सबको बताई जाती हैं। तो जहाँ तक मैसेज देने का सवाल है, हमारे ईट राइट इंडिया में भी कोई कम्प्लेक्स मैसेजेस नहीं है। हमें कोई लंबी चौड़ी कौन सा एमिनो एसिड किस में है और कौन सा एमिनो एसिड, वो सिंपल तरीके हैं जो बताते हैं कि ये और ये ले लो। तो दाल के साथ अगर चावल ले लो तो दोनों तरह के एमिनो एसिड्स जो ज़रूरी हैं, दाल अकेले लेंगे तो एक प्रकार का एमिनो एसिड मिलेगा, चावल के साथ लेते हो तो इसीलिए चावल के साथ लिया जाता है। तो लोगों के लिए तो मैसेजेस जो है वो बहुत सिंपल है।
ये कैंपेन आसान इसलिए मुझे लगता है कि इस कैंपेन का हर व्यक्ति को इंडिविजुअल फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि आप ये कैंपेन फैला रहे हैं तो इसमें कोई गवर्नमेंट को कोई स्पेशल फ़ायदा हो रहा है या FSSAI के CEO को कोई आगे जाके कोई भारत रत्न मिल जाएगा उसके कारण, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो कैंपेन है इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति को सीधे सीधे फ़ायदा होता है। दूसरा, वो फिज़िकल एक्टिविटी वाले कैंपेन को भी हम इसलिए साथ में चर्चा कर रहे हैं कि बोथ गो टुगेदर, और दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस के लिए भी कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा दौड़ लिया, थोड़ा योगा, क्लासिकल योगा ना भी आता हो थोड़ा हाथ पांव मार लिया। तो आजकल तो इतने प्रकार के योगा को भी इतने तरीके से लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है कि कहलाता वो योगा है, क्योंकि लोगों को योगा के नाम से सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए योगा, जैसे आपने देखा कई उछलने कूदने वाले टाइप के योगा जो है बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ उनमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। उससे हमें कैलोरी इत्यादि बर्न करनी है। अभी तो जो गरीब लोगों के लिए भी जो है ओपन जिम का कंसेप्ट हो गया। अभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने इलाकों में जिम लगाते हैं। मैंने अपने इलाके में 200 जिम लगाए पिछले 5 साल में। हर मोहल्ले में जिम लगा दिया कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है 2000-5000 रुपये खर्चा करने की। जब समय मिले आके अपने घर के पास मैदान में जाओ, जिम कर लो। और कॉरपोरेशन के स्कूल के बच्चे बस्ता लेके, हमने देखा 1 बजे जब वापस लौटते थे स्कूलों से, मैंने बहुत जगह पे देखा वो अपना बस्ता रखा, थोड़ी देर जिम करते हुए दिखते थे। रात को मैंने 10 बजे 11 बजे भी लेडीज़ को उन जिम्स के ऊपर जिम करते हुए देखा, क्योंकि सुबह जब वो आती है तो देखती बड़ी लंबी, उसके ऊपर भीड़ होती है, मुश्किल होती है, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट ए टाइम कि जब उनका घर का भी काम हो गया। तो सिंपल चीज़ें हैं जिनसे, अब साइकिल है, साइकिल तो मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा सस्ता हथियार है। आप मेरा ख्याल से 6 महीना साइकिल चला ले तो मेट्रो के किराए के अंदर से आपकी बढ़िया वाली साइकिल जो है शायद जो है आ जाएगी। और साइकिल तो आपको भी फ़ायदा करती है, आपके हार्ट को भी मजबूत करती है, और सीधे आपको जो है वो, यानी एनवायरनमेंट की इतनी बड़ी बातें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये वो सब चीज़ों में एक प्रकार से कंट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं, ये दोनों एक्चुअली इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है इनके पूरी तरह से सफल होने का। और वो सबसे बड़ा कारण मुझे उसका ये लगता है कि इनके बारे में अगर सही तरीके की जानकारी हमने लोगों को दे दी तो शायद लोग उसको बहुत खुशी एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जानकारी के अभाव में होती हैं। जब एड्स का एपिडेमिक आया था 80s एंड में या 90s में, तो एड्स कैसे होता है ये लोगों को नहीं पता था। उस समय तो हम एक मीटिंग में गए थे 94 के अंदर, बैंकॉक के अंदर, दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर थे, एक मेडिकल पार्लियामेंटेरियंस फोरम का। तो वहाँ बड़े विकसित देशों के जो प्रतिनिधि थे, उनको भी जो है अपने देश के बारे में डर लगता था कि हमारे को लगता है पता नहीं हमारी पूरी इससे कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट ना तबाह हो जाए इससे, क्योंकि उनको अपने जो देश की जो सारी सिस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, खासकर जिस तरीके से एड्स फैलता है उसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसकी तो। लेकिन जब हमने देखिए हमारे देश में भी लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, बताया कि एड्स होता कैसे है, क्योंकि कोई भी नॉलेज से डिप्राइव होके उसकी जो है एक प्रकार से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब नॉलेज आपने पूरी दे दी कि एड्स क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बावजूद भी अगर इफ समबडी इज डिटरमिन्ड कि उसको अपना नुकसान करना ही है तो यू कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आप उसकी बदकिस्मती है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने लोगों को ढंग से एजुकेट किया तो आज जो है जो 90 के दशक में लगता था कि एड्स कितना बड़ा हैवक क्रिएट कर देगा, आज भारत ने जो है उसका एक तरह से इतना ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है कि वी आर कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर द होल वर्ल्ड। तो इसलिए जिस चीज़ की आप
एजुकेशन दे दें। और सबसे बड़ा जो मेरा अपना जो अनुभव है पब्लिक लाइफ का, कि सरकार कितना भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम बना ले, कितनी वाइजेस्ट इंटेंशन और विजडम का प्रयोग कर ले, लेकिन जब तक उस प्रोग्राम को सोसाइटल सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटी का उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक वो प्रोग्राम अपनी सफलता की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटल मोटिवेशन है। हमने जब पोलियो अभियान शुरू किया था तो हम लोगों को एक ही बात, उनकी भावना अराउज करते थे कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, तुम्हारे डीएनए में इनहेरेंट गुडनेस है और तुम्हारे डीएनए के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई के हिसाब से यू आर मेंट टू डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तुम्हारे को स्वामी विवेकानंद और कौन कौन से लोगों का हम सब उदाहरण देते थे, खासकर मैं तो हमारे फेवरेट है स्वामी विवेकानंद, उनका उदाहरण अक्सर लोगों को दिया करता था और उनका वो जज्बा हम लोग जागृत किया करते थे कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर चिल्ड्रन, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। किसी न किसी रूप में उनको मोटिवेट करते थे। और हमने देखा है कि जहाँ सब प्रकार की स्कीम फेल हो जाती है, सब प्रकार के रूल कायदे कानून फेल हो जाते हैं, वहाँ पर केवल एक टूल सबसे ज़्यादा काम करता है, वो टूल है मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप साधारण से साधारण व्यक्ति से बड़ा काम करा सकते हैं। बेईमान से बेईमान आदमी को भी आप ईमानदारी से कोई काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और उस टूल का अगर ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उसको ठीक ढंग से लोगों को डिसमिनेट किया जाए। अब आपने जो बात कही पवन जी की, हमारा छोटा सा सिस्टम है, थोड़े थोड़े लोगों को, अब जैसे अभी आपने यहाँ 10 NGO बुलाए और आपने कहा सारे देश भर में 50 NGO इन्वॉल्व हो गए, तो मैंने कहा इससे क्या होगा भाई। हम जब आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉल, जब हम लोगों ने दिल्ली में पोलियो किया तो 400 तो NGOs और इस तरह के लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोगों का लाइव कांटेक्ट था। उनकी मदद से इंडिविजुअल्स जो इन्फ्लुएंसर्स थे और जो उनकी मदद से 2000 से ज़्यादा मीटिंग्स को तो मैंने खुद एड्रेस किया। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये जो सारी सोसाइटी है ये वेल डिफाइंड कंपार्टमेंट्स के अंदर बटी हुई है। जैसे आप एक व्यक्ति को अगर मोटिवेट करें तो वो आप एक व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति के नीचे एक बहुत बड़ा उसकी सल्तनत है जिसका वो बॉस है। वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, वो पब्लिक सेक्टर हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, या इवन वो झुग्गी झोपड़ी हो। हमें आज भी याद है कि इस पोलियो के प्रोग्राम में हमने 1100 जो झुग्गी क्लस्टर्स के जो प्रधान थे उनको बुला के हमने मोटिवेट कर दिया, तो हमारा सारा काम झुग्गियों के अंदर बढ़िया ढंग से हो गया। हम उनके फ़ायदे की ही उनको बात समझाते थे। हमने एक बड़े गुरुद्वारे के प्रधान को बुलाकर उसके साथ डिस्कशन किया, मंजीत सिंह कलकत्ता साहब से, तो उन्होंने एक उस डिस्कशन के बाद दिल्ली के 516 गुरुद्वारे इन्वॉल्व कर दिए। अब गुरुद्वारे के थ्रू जो है हज़ारों लाखों लोगों की संगत इन्वॉल्व होनी पड़ी। हमने मोटिवेट किया एक आदमी को। हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट को और साथ में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को मोटिवेट किया बात करके। तो हमें उनकी 2 लोगों के मोटिवेशन से 3000 मस्जिदों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऐसा नहीं कि हम एक एक मस्जिद में गए, लेकिन हमें 3000 मस्जिदों के अंदर इन्वॉल्वमेंट मिल गया। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज, एक डायरेक्टर एजुकेशन को मोटिवेट करने पे आप दिल्ली के अंदर 90,000 टीचर और 20 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हो।
पता नहीं मैंने पहले सुनाया कि नहीं सुनाया, और छोटे छोटे सिस्टम का इस्तेमाल करके जब हम लोगों ने ये बात मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि पोलियो की कहानी मुझे सुनाने का शौक़ है, लेकिन मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि छोटे छोटे ये प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हमें ये जो ईट राइट इंडिया के कैंपेन को एक एक आदमी तक कैसे पहुँचाना है। उसको सबसे पहले मान लीजिए हम दिल्ली को ही टारगेट करके दिल्ली के अंदर एक एक बच्चे तक, एक एक कॉलेज बॉय और कॉलेज गर्ल तक, एक एक रिलीजियस प्लेस तक, एक एक स्काउट गाइड हर एक तक पहुँचाएंगे। अब ऐसा थोड़ी स्काउट के लिए एक एक आदमी को पकड़ना है। हम गए 40 लोधी एस्टेट में, उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर कौशल। हमने जाके उनसे आधा घंटा मीटिंग की। हमने कहा साहब देखिए, देश में 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में हो रहे हैं और सारे दुनिया में 116 देश ऑलरेडी पोलियो फ्री हो गए हैं। व्हाट कैन वी, शुड वी नॉट डू समथिंग अबाउट इट? उनका आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? मैंने कहा आपके पास 52,000 पुलिस के कांस्टेबल हैं, आप इनको क्यों नहीं इस काम में लगा देते? शायद मोतकंड जी भी उस समय पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे 25 साल पहले, अभी भी हैं, मेरे ख्याल से रिटायर हो गए ना अब तो। तभी भी ये बच्चों का स्ट्रीट चिल्ड्रन का काम करते थे साथ में पुलिस में रहते हुए। तो उन्होंने 52,000 पुलिस के कांस्टेबल हमारे पोलियो के काम में लगा दिए। और आपको आश्चर्य होगा कि 94 में पोलियो के ऊपर, पोलियो केंद्र पर ले जाने का एडवर्टीजमेंट हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से ज़्यादा दिल्ली की पुलिस देती थी। दिल्ली की पुलिस अपील करती थी लोगों को। और फिर एक दिन जो अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो 15 दिन के लिए लिंक ऑफिसर बन गए। हेल्थ सेक्रेटरी छुट्टी पे गए, वो होम सेक्रेटरी थे, वो 15 दिन के लिए लिंक ऑफिसर बन गए। उनको हमने बोला कि आप लिंक ऑफिसर बने हो, अब हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना आपके लिंक ऑफिसर बनने का हमारे कैंपेन के लिए। तो उनका बोलो आपको क्या चाहिए? हमने कहा आपका ये जो 100 नंबर है ये हमें एक दिन के लिए आप दे दीजिए। एक दिन वो 100 नंबर जो है वो सारे दिल्ली में सिर्फ यही सेवा देगा कि कहीं कोई वैक्सीन की शॉर्टेज होगी और कोई 100 नंबर पर फ़ोन करेगा तो आपकी जो पुलिस की जिप्सी है वो सारा सिस्टम वो उसके लिए काम करेगा। तो दिस ऑल हैपेंड, दीज आर जस्ट few examples of the thousands that I can give. I have written most of them in my book, whatever my experience was. अब सेंटर के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार थी। हम जाकर मिले वहाँ के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से, उनको मोटिवेट किया। कहने लगे आप क्यों आए हो यहाँ पे? हम आपके दफ्तर में सारे ऑफिसर्स भेजेंगे। ही वाज सच ए नाइस मैन, आई ऑलवेज रिमेंबर हिम। उन्होंने सारे अपने ऑफिसर्स को मेरे दफ्तर में भेज दिया। डायरेक्टर दूरदर्शन को, नवीन चावला साहब उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा आप जो कुछ बोले हम वो सब करने को तैयार हैं। दूरदर्शन लग गया, ऑल इंडिया रेडियो लग गया। हम जी टेलीविज़न के मालिक को मिलने गए। हम उनके, वो कहने लगे हम आपके दफ्तर में आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, हमारा काम है, हम आपके पास आएंगे। हम उनका लॉरेंस रोड पे दफ्तर था, वहाँ पर गए मिस्टर जवाहर गोयल के पास। उनको जाके बताया 40 मिनट हमने क्या दुनिया में हो रहा है। वो मोटिवेट इतने हो गए, उन्होंने कहा डॉक्टर हर्षवर्धन, जब तक या तो पोलियो इरेडिकेट ना हो या जब तक आप हमें कहोगे, आप जो कहोगे, जी टेलीविज़न आपके पोलियो के लिए डेडिकेटेड है। हम ये प्रो बोनो ये पूरी सेवा करेंगे। और उन्होंने एक उस मीटिंग के बाद जो हमने कैलकुलेट किया, अपनी किताब में भी लिखा है, 63 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट जी टेलीविज़न पे बिना 63 पैसे लिए दिया। तो हमें सारी सोसाइटी का सारा सिस्टम पूरी तरह से ये एक सिस्टम के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपार्टमेंट्स के अंदर बटा हुआ है। हमें उनके जो लीडर्स हैं उनको लीडर्स कहिए, उनके इन्फ्लुएंसर्स कहिए, वो ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया, आप भले ही आपका नहीं है फिट इंडिया, आप ये ईट राइट और फिट इंडिया दोनों साथ साथ लीजिए और इसको लेकर मैसेज दोनों में बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा समझाना नहीं है। दोनों में
इंडिविजुअल आदमी का ही फ़ायदा है। और यंग लोगों को विशेषकर जो है, बड़े लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि कभी कभी यंग एज में जो है इसका महत्व नहीं समझ में आता है। महत्व आता है इस उम्र में आके, जब मान लीजिए कोई बीमारी लग जाए या उसके कारण आदमी कुछ चीज़ें करता है, तो इस उम्र में आके अगर जब अप्रिशिएट करना शुरू करता है, वो चीज़ अगर बच्चे को कन्विंस कर दे सही एज में कि अगर तुमने बड़ी उम्र के अंदर अच्छी तरीके से रहना है तो ये चीज़ें तुम अपनी लाइफ में करो। और सौभाग्य से आज स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, ये एक प्रकार से पैशन जैसा डेवलप हो रहा है लोगों के अंदर, मन के अंदर ये विचार पैदा हो रहा है। बाज़ार के अंदर भी जो फूड आउटलेट वाला है उसको भी अगर मोटिवेट कर दिया कि बाज़ार में तुम्हारे आपके इस दफ्तर के बाहर अगर 25 रेडी वाले हैं और इन रेडी वालों को ही आप बुला के एक दिन बैठाओ कि तुम इसको ज़रा अपने वाले अलग अलग बुला के समझा दो, अपने वाले को सुंदर कर लो, इसकी क्लीननेस बढ़िया कर लो, एक ग्लव्स भी खरीद लो, तो ये बाकी सारे जगह से जो है ना उसकी बजाय तुम्हारे इसके ऊपर जो है लोग आकर खाना शुरू कर देंगे। मैं जब 2 साल पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना तो 3 महीने के बाद मैंने देखा कि यहाँ तो सिर्फ क्लियरेंस देने का ही काम होता है, वो प्रॉब्लम आती है उसका क्लियरेंस, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से मैंने कहा इससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ठीक नहीं होता है। हमने 2 महीने तक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराया। हमने कहा वो सारे काम सोचिए जो लोग खुद कर सकते हैं, छोटे काम, अच्छे काम, पॉजिटिव काम जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग, एक दिन 50 लिखे, 50 के करते करते 75 हुए, 100 हुए, 200 हुए, करते करते 600-700 हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे काम लिख लिए जो हमने जिनको नाम दिया ग्रीन गुड डीड्स। एनीबॉडी कैन डू देम। कोई उसको करने में पैसा नहीं लगता, उसको करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती, कोई लेबर नहीं लगता, कोई कॉस्ट नहीं लगती। और उल्टा आप अगर, अब देखिए मैंने नोट किया कि केवल आगे आगे इतनी जगह पे 8 गिलास पानी यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर वेस्ट हुआ। बार बार बोलता हूँ भाई, पानी किसी को भी बिना पूछे आप मत दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू कीप ऑल दिस ग्लासेस विद फुल वाटर एंड ऑल। अरे पूछ लो, ज़्यादा आपको चिंता है अपने गेस्ट की, 2 घंटे में एक बार आदमी को पानी चाहिए, आपको चाहिए 1 गिलास में उसको थोड़ा पानी दे दीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक आदमी ने थोड़ा सा इतना पिया है, ये सारा पानी वेस्ट होने वाला है। अब दिस इज़ ए स्मॉल ग्रीन गुड डीड। आप घर में भी करेंगे तो अपने पानी बचेगा ना। हम बोलते हैं कि एक कमरे में बैठे हो, 5 कमरे की बत्ती क्यों जल रही है? अगर बंद करने की आदत होगी तुम्हारा बिल कम होगा। कोई ऐसे कोई हरक्यूलियन टास्क नहीं बोल रहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे। अब लोगों को बोलना शुरू किया ग्रीन गुड डीड करो, हर रोज़ एक, 700 की 700 मत करो, एक रोज़ करो। ये तुम्हारी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए अपना बिहेवियर ग्रीन गुड बिहेवियर बना लो। बिल्डिंग वाले अपनी ग्रीन गुड प्रैक्टिस अपनाना शुरू कर दो। और हमने खाली किया नहीं ये, वहाँ पर हमने आपकी पूरी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के 35 ऑफिसर जो थे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, सबको सारा देश बांट दिया। हमने कहा वहाँ जाना पड़ेगा, हर जगह जाके ग्रीन गुड डीड का बात करना पड़ेगा। अपने घर पे मैंने 3 महीने तक 25,000 लोगों को बुलाया, 25,000। मॉर्निंग में स्कूल के बच्चों को बुलाता था और दोपहर में जो है रोज़ 500-600 NGOs को बुलाता था। सारे मेरे कंस्टिट्यूंसी के मैंने सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया, उनके थ्रू फिर एक प्रिंसिपल को मोटिवेट किया, उसके थ्रू स्कूलों में ग्रीन गुड डीड शुरू हो गया। तो इसी तरह से आपका ये जो ईट राइट इंडिया कैंपेन है, इसके लिए अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं उनसे नीचे तक इसको कैसे, मतलब इसका जो वर्ल्ड फूड डे का तो मतलब ये है ना कि फूड का मूवमेंट वर्ल्ड में फैले। तो फूड का मूवमेंट वर्ल्ड में नहीं फैला सकते हम, देश में तो फैलाएं। देश में नहीं अभी फैला सकते तो कम से कम दिल्ली के अंदर जब हमें सपना देखा था तो लोग कई बार कहते थे अरे भाई दिल्ली में कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा देश है। लेकिन हमने जब दिल्ली में करा, सफल हो गया, तभी तो लोगों ने जो है देश के अंदर सफलतापूर्वक करने की हिम्मत लोगों ने जो है ठानी। तो आज तो ये
मेरा ख्याल से सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं, जितने लोग यहाँ आए हैं। आप भी अगर आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि कम से कम हर एक व्यक्ति 10 NGO या 10 ऐसे लीडर्स जिनकी सल्तनत में उनके नीचे बहुत सारा, अब एक कॉर्पोरेट के व्यक्ति को जाके कन्विंस कर दोगे, उसके पास अगर 5,000 10,000 एम्प्लॉय हैं, एक बार ढंग से मोटिवेट हो गया तो वहाँ शुरू हो जाएगा ईट राइट इंडिया कैंपेन। उसकी फिर कैंटीन भी उस तरह बन जाएगी, उसका सिस्टम भी उसी तरीके से बन जाएगा। तो अगर इतने लोग भी आज अगर इसको सारे काम को आने वाले वर्षों में बड़ा आंदोलन बनाना, वर्षों तक का इसमें काम नहीं है, ये तो दिल्ली में तो आप महीनों में कर सकते हो। बस इसके लिए थोड़ा सा पागलों की तरह हमको लगना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई इस मूवमेंट का पोटेंशियल विरोधी होगा। इसमें कुछ लेफ्टिस्ट राइटिस्ट नहीं है, सबका पेट वही है और सबके लिए हेल्थ के इंडिकेटर्स वही हैं, सबके लिए पैरामीटर्स वही हैं। इसमें कोई नहीं कह सकता ये नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है इसलिए इसका विरोध ही करना है। कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? किस आधार पे करेगा? अभी तक किसी ने किया? कोई आया कोई एक आधी स्टेटमेंट आपके पास इसके बारे में? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बिकॉज इट कंसर्न्स एवरीबॉडी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देयर हेल्थ। उनकी हेल्थ को ठीक करने का जिम्मा उनका है, लेकिन जिम्मा हमने ले लिया है। अब हमने लिया तो हम उसको सिंसियरिटी से करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे, वैल्यूज़ के साथ करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, विजन, सब चीज़ों का उसमें समावेश करेंगे और सही मायने में उसका समय समय पे रेगुलर इवैल्यूएशन करते जाएंगे। और इसमें जो आपने जितने तरह के स्टेक होल्डर्स बताए, कोई डिलीवर करने वाला है, कोई रिसीवर है, कंज्यूमर है, कोई घर के अंदर भी जो है घर की मालकिन भी है और घर के अंदर जो हेल्प करने के लिए आती है वो भी है। सब लोगों को इन्वॉल्व करना है, एक एक यूनिट को इन्वॉल्व करना है। ये तो जब तक कहें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि देयर इज़ सो मच दैट आई हैव लर्नड एज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स। अब मुझे लगता है कि जो एकदम इम्पॉसिबल, सीमिंगली डिफ़िकल्ट काम को करने में मज़ा आता है। इस किताब के प्रीफेस में मैंने यही एक लास्ट पैराग्राफ लिखा है कि ये किताब लिखी इसलिए है कि जो सीमिंगली इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट काम होते हैं वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर 1, you should have the desire, you should have the conviction, you should have the commitment, and when you do start with that, you will always have the blessings of the people and you will always have the blessings of God. तो इस नाते इस कैंपेन को भी हम इसी तरह से ले जीवेद शरत शतम हमारे यहाँ बोलते 100 साल तक सिर्फ वैल्यू सिस्टम्स की मदद से खाना पीना ठीक रखना, अपनी आत्में ठीक रखना, दिनचर्या ठीक रखना, अपनी जो मन आत्मा उसकी विचार की शुद्धि रखना, इन्हीं चीज़ों से 100 साल तक आदमी जीवित रह सकता है। इसके लिविंग एग्जांपल्स हैं, सब कुछ है। और खाना तो अगर थोड़ा कम खाने की आदत डालोगे तो पैसा भी बचेगा। और जो ये तो बड़ा मेरे लिए तो बड़ा पैशन वाला काम है जो ये 10 लोग आए यहाँ पर और जो ये वाला NGO चला रहे हैं कि वो एक ऐप के ऊपर उसकी मदद से टेलीफोन आएगा कहीं से और जो संभावित वेस्ट खाना है उसको वो उसी समय सही स्थान पे पहुंचाएंगे। इस मूवमेंट तो मुझे लगता है इस मूवमेंट में तो किसी NGO का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तो हर इंडिविजुअल व्यक्ति को इस मूवमेंट के अंदर जो है अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन तो बहुत इसके अंदर अभी देखिए एयरलाइंस में जब वो देते हैं तो वो कितनी तकलीफ़ होती है, इतना सारा आपको मिलता है। आप उनको कहिए कि भाई साहब आप इतना सही दे दीजिए, इसमें से 1 पीस दे दीजिए, 2 पीस, दे डोंट एग्री, दे विल पुट एवरीथिंग देयर एंड दे विल जस्ट देन टेक एवरीथिंग एंड देन थ्रो इट। इट इज़ सो डिस्टर्बिंग। अब हवाई जहाज में टाइम कम है, समय कम है, सिस्टम उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, लेकिन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाए तो वो भी सब ऑर्गेनाइज हो सकता है। एक इतने बड़े बड़े इनोवेशन हो रहे हैं तो क्या इज हार्डली एनीथिंग। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इन पे भी हमारा FSSAI देखे कि फूड वेस्टेज कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ होने की संभावना है, उसके लिए
हो सकता है कि जो हवाई जहाज़ चलाने वाले हों उनके पास अपना बहुत सारा काम है, उनको पैसा कैसे कैसे कमाना है उसके लिए उनका सारा ध्यान हो, लेकिन हमारा ध्यान क्योंकि हमारे फूड पर है, तो अगर हम उनको कोई ऐसा डेवलप करके ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल देंगे जिसमें उनका खर्चा भी कम होगा, फूड की बचत भी होगी और एयर पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी सेहत ख़राब नहीं होगी। कई बार क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें रखी होती है तो यू डोंट फील लाइक वेस्टिंग, सो आप सोचते हो ये भी हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी है, तो आप सब खा लेते हो कि फूड वेस्ट नहीं करना। अब फूड वेस्ट नहीं करना, लेकिन ऐसे डॉक्टर मुझे पता है कि वो आपका फ़ायदा नहीं कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को जो है कमज़ोर कर रहा है। तो ये भी FSSAI का काम है, हमारा काम मतलब सिर्फ। और मुझे खुशी है कि FSSAI ने बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स भी किए हैं, रेडिकल थिंकिंग भी अपनी की है, उसके अंदर से जो नए नए इश्यूज़ को हम अटेंड कर रहे हैं उनको मॉडस्ट तरीके से टेकअप कर रहे हैं, उनको फिर हम अब स्केल अप भी करेंगे। और पीछे तो हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी इंटरनेशनल मीटिंग थी साउथ ईस्ट एशिया की, वहाँ पे रीजनल डायरेक्टर WHO की प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया था और उन्होंने कहा कि हम इंडिया का उदाहरण देके इसको सारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसको बड़ा मूवमेंट बनाएंगे। और बहुत खुशी है कि आज अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स की अच्छी अच्छी बातें सुन के हमको भी बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला है और हम अपनी अप्रोच को और ज़्यादा हम लोग रिफ़ाइन कर पाएंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन सुखी हो। आप अभी तक एक्सरसाइज ना करते हो तो कम से कम आज से अपने जीवन में एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में डालें। आपके खाने पीने का समय व्यवस्थित ना हो तो उसको व्यवस्थित करें। खाने के अंदर जो कुछ आपको थोड़ी थोड़ी कमी करनी है वो सब करें। शुद्ध सात्विक आहार इसको लेने की आदत डालें। और ये सब आपने किया तो मेरा ख्याल से ये वाला कार्यक्रम तो हम मानेंगे कि सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। 94 में पहली बार पल्स पोलियो का अभियान किया तो 1995 के अंदर मेरे को एक बहुत सीनियर आदमी मेरे को घर पे मिलने आए। तो वो कहने लगे कि ये जो कुछ भी एक साल किया इसको कोई लिखने का प्रोग्राम है। मेरे तो माइंड में कुछ था भी नहीं। मैंने कहा मैं तो कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं, ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता, पढ़ा लिखा मैं ठीक ठाक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है ना अंग्रेजी लिखने में प्रॉब्लम। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने कहा ये अनुभव है, ये इसको देश के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो 95, 96, 97, 98 में उस समय भी दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर था। मिनिस्टर होता है आदमी तो ज़्यादातर लोग समझते हैं बढ़िया मज़े की ऐशो आराम की ज़िंदगी है, लेकिन ये मिनिस्टर को पता होता है कि उसकी क्या हालत होती है। तो कोई समय नहीं मिला। जैसे ही 98 ख़त्म हुआ तो मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट कर लिया। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं एक डायरी के ऊपर एक कोने में कोई भी ऐसी घटना होती थी जो इस किताब में लिखने लायक होती थी, वो मैं लगातार लिखता रहा उस पॉइंट को। और फिर 2001 के आसपास जो है ये ऐसा हुआ कि हमको लगा कि शायद 2001 के अंदर अभी थोड़े समय में या तो पोलियो एरेडिकेट हो जाए या बाई चांस 98 के बाद 2003 में गलती से दोबारा मंत्री बन गए तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, और उसके बाद जब टाइम मिलने की संभावना होगी तो शायद जो है ये पोलियो एरेडिकेट हो जाएगा। तो फिर शायद हो सकता है कि किताब की जो प्रासंगिकता है उतनी ना रहे। तो फिर मैंने ये किताब 2001 और 2003 के बीच में हफ्ते में एक दिन इस किताब को लिखने के लिए एक्सक्लूसिवली स्पेयर करके इसको लिखा। 2004 में अटल जी ने इसको 7 दिसंबर 2004 में उस फंक्शन पे अटल जी भी थे, अडवाणी जी भी थे,
उस फंक्शन पे मोहन भागवत जी भी थे, उस पर सुषमा जी भी थी हमारी, आज तो हमारे बीच में नहीं हैं। और रीजनल डायरेक्टर WHO थे, देश के सारे पार्लियामेंट मेंबर्स थे और सभी हमारे चीफ मिनिस्टर्स थे। और वो जो भाषण वहाँ अटल जी ने दिया था, वो शायद मेरे ख्याल से उनके जीवन का सबसे ज़्यादा अंतिम, जो बहुत खुशी से, उमंग से, और जो उनका ओरिजिनल अटल जी वाला भाषण होता था, वो वाला उन्होंने भाषण दिया था। तो ये वो किताब है। इसका फिर 2013-14 में हमने थोड़ा सा रिवाइज़ करके एक चैप्टर इसमें ऐड किया, ड्रीम फुलफिल्ड। और किस्मत की बात यह है कि 2014 में जब WHO ने भारत को सर्टिफाई किया, तो सौभाग्य से मैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बन गया था, तो वो सर्टिफिकेशन भी मैंने WHO के लोगों के हाथ से रिसीव किया। तो दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो जो हमारे 4 एक्सपर्ट्स हैं, मैं आई थॉट कि I should, because they have been called here as experts, they can maybe give their words of wisdom later on for the success of this program, sharing upon. I thought let me share my own experience, because हम लोगों ने जब किया था तो हम तो क्रूड तरीके से काम करते थे, जो प्रॉब्लम आती थी उसको क्रूड तरीके, कोई एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन 4 लोगों के कोर ग्रुप के साथ छोटा सा काम शुरू किया था, which became a big ड्रीम रियलाइज्ड। क्योंकि मुझे सिमिलैरिटी लगी कि ये कैंपेन भी हम जो है सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट से बड़े पैमाने पर सफल कर सकते हैं। बना, मैं कभी बोल नहीं पाता था, आज मोटिवेशनल स्पीकर बना। सरकारी स्कूल में पढ़ा तो सारे लोगों काम कर रहा हूँ सर, जो करने चाहिए। मगर मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली सर 5-7 दिन पहले मेरे एक पत्रकार ने पूछा कि इंडिया का हु इज द, मतलब सबसे अमीर आदमी कौन है? रैरिटी में है या फिर इंडिया में किसी ने जिंदगी वही है। तो हमेशा खुश रहो और खुशियाँ दो, सबको मोटिवेट करो, यही हमारा फर्ज है। नमस्ते, जय हिंद। आज FSSAI ने फूड सेफ्टी मित्रास को आगे लेके आए हैं, ताकि वो जन जन को, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को एजुकेट करें ऑन फूड हाइजीन। सर इस पे बताइए कि किस तरह से इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, जो FSSAI ने, हमारे मंत्रालय ने जो ईट राइट इंडिया का जो कैंपेन शुरू किया है, ये वास्तव में एक जन आंदोलन है। ये हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप सब इसके पार्ट हैं। और सभी के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ठीक खाना, ठीक मात्रा में खाना और ठीक एक्सरसाइज करना ये ज़रूरी है। हम FSSAI के माध्यम से इसके जितने भी विभिन्न पहलू हो सकते हैं, व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल, एक उसका परिवार, एक उसका वर्क प्लेस, बच्चे के लिए उसका स्कूल, कॉलेज, और समाज के अंदर जो फूड प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, फूड आउटलेट्स हैं, वो छोटा स्ट्रीट वेंडर हो या बड़ा 5 स्टार होटल हो। पिछले दिनों आपने देखा कि हम लोगों ने वो जो शेफ़ थे, 1000 शेफ़ का कार्यक्रम किया है। वो बड़े बड़े होटल के लोग थे कि मैसेज वहाँ से भी ठीक जाना चाहिए। और इसको एक सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि समाज की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं इन्वॉल्व हो जाएं और समाज में ऐसे वॉलंटियर्स खड़े हो जाएं जो फूड सेफ्टी के मित्र हो जाएं। पोलियो के अंदर होता था पोलियो सैनिक और पोलियो की सेना। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो है फूड सेफ्टी की सेना बन जाए देश में। फूड सेफ्टी मित्र जो है वो फूड सेफ्टी सैनिक बन जाएं। और इसके लिए हम समाज के अच्छे ज़िम्मेदार लोगों को
ट्रेन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, NGOs को ट्रेन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे जहाँ समाज में फूड की वेस्टेजेस होती हैं, उस वेस्ट होने का पोटेंशियल रखने वाले फूड को अगर कोई उनको टेलीफोन या ऐप की सहायता से बता दे तो वो संभावित वेस्ट फूड को उस पेट तक पहुंचा दे जो शायद पर्याप्त मात्रा में कैलोरी के लिए इस देश के अंदर 70 साल के बाद भी तरस रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम सारे समाज के लोगों को मिलके, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री मूवमेंट है, उसके लिए ईट राइट झोला बनाया गया। पहले भी बहुत सारी चीज़ें पिछले कार्यक्रम में ईट राइट किट थी और दूसरी चीज़ें थी। अभी ईट राइट मूवमेंट के स्पेशल जैकेट्स बनाए गए हैं। ऐसे वॉलंटियर्स जो है जो जगह जगह जाएंगे, लोगों को लाइसेंस इसके लिए लेने की प्रक्रिया इतनी सरल और सहज हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये मित्र हमने क्रिएट कर दिए हैं। बीच में बहुत सारे लोग कानून का दुरुपयोग करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते थे, बीच में तरह तरह के मिडल मैन और इस तरह के लोग भी आ जाते थे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एलिमिनेट करने के लिए हम सिस्टम को दिन प्रतिदिन रिफ़ाइन कर रहे हैं, समाज को उसके साथ जोड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि धीरे 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 ये एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बने जिसमें लोग ये बात का ध्यान रखें कि उन्हें थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है, यानी थोड़ी सी हैबिट्स में परिवर्तन, खाने की थोड़ा सा जितना खाते हैं उससे कम खाना है, थोड़ा नमक, चीनी और जो घी है, फैट है, उसको अपने भोजन के अंदर कम करना है, समय पर खाने की आदत डालनी है, जो फूड है उसको संतुलित रखना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, उसमें मिनरल्स भी हो, उसमें विटामिन्स भी हो, उसमें फाइबर भी हो, फ्रूट वेजिटेबल सब चीज़ें उसके अंदर हो, उसमें दाल भी हो और चावल भी हो। यानी ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है जहाँ तक जितना अधिक से अधिक हो सकता है। अभी रिसर्च कहती है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो शायद स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे कैंसर्स को लोग मांसाहारी से एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये लोगों की पर्सनल चॉइस है। हमारा काम है कि लोगों को सही जानकारी देकर सचेत करना और साथ में उनको प्रेरित करना कि इसके साथ थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी भी करते रहिए। तो सिंपल नियमों का पालन करने से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप बिना डॉक्टर मरीज़ की सहायता के 100 वर्ष तक निरोगी रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या मैसेज यही है हमारे आज इस कार्यक्रम का। वर्ल्ड फूड डे, सारे दुनिया में अच्छे फूड का मैसेज फैलाना है। हम अपने भारत के अंदर उस दुनिया के संकल्प को सफल और सार्थक करके दिखाना चाहते हैं। हम भारत में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसको दुनिया के लोग जो है फॉलो करें। डॉक्टर साहब कल यूनिसेफ ने जो एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत में 40% खाना बर्बाद हो जाता है, वेस्ट। देखिए वो रिपोर्ट तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही ना, वो कितना फीसदी होता है कितना नहीं होता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को हम खाली रिपोर्ट्स में लिखते रहेंगे उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम में से हर भारतवासी को ज़मीन पे उतर कर उसके लिए कंट्रीब्यूट करना होगा ना। अरे इसके लिए क्या है, जो पार्टी करता है अगर वही चिंता कर लेगा कि मेरे को अपनी पार्टी में फूड वेस्ट नहीं होने देना, या तो इतनी मात्रा में ही बनाऊंगा जितना इस्तेमाल होगा, या अगर वेस्ट होने की संभावना होगी तो वेस्ट होने से पहले उसको सही स्थान पर पहुंचा दूंगा। जो प्लेट लेके खाना खाना शुरू करता है वो भी अगर ये सोचेगा कि मेरे को फूड वेस्ट नहीं होने देना तो उतना ही खाना परोसेगा जितना उसको खाना चाहिए। बनाया है जहाँ पे फूड डोनेशन हम कर सकते हैं। बताया ना आपको, अभी यहाँ पे 10 NGOs को यहाँ पर विशेष रूप से देश भर में 50 NGOs ऐसे आ गए हैं, 10 दिल्ली के हैं, और ये जैसे जैसे ग्रो करेगा हम तो सारे देश के लोगों से अपील करते हैं कि ईट राइट इंडिया में जिस भी रूप में आप एक अपना शरीर ठीक रखने के लिए तो अपनी आदतों में परिवर्तन करिए, लेकिन सोसाइटल भी आपका उसमें कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मैल न्यूट्रिशन, हंगर, इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे ठीक प्रकार से जूझ सकेंगे समाधान। और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हमने देखा है कि कोई प्रॉब्लम को अगर ठीक से डायग्नोज करो और उसके ऊपर ठीक से काम करो तो फिर वो प्रॉब्लम का
समाधान हो सकता है। ये उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत सारी अपनी योजनाओं में आपने देखा कि हर एक योजना में करोड़ों की तादाद में उसके लाभार्थी हैं। वो इसीलिए हुआ है कि सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया है। सरकार ने पैनी निगाह से उसके ऊपर योजना बना के उसको क्रियान्वित किया है। सर, फूड एडेल्टरेशन से रिलेटेड आपने कोई सजेशन दिया है पॉलिसी में कोई चेंजेस चाहिए? देखिए पॉलिसी वगैरह में तो ये विचार करके जो कोई मान लीजिए कोई अमेंडमेंट्स होते हैं, ये तो सब एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये तो इतने समय से इतना कानून वगैरह बना है और वी आर वेरी ओपन। जो भी चीज़ हम लोग कानून के रूप में बनाते हैं या परिवर्तन करते हैं तो उसको बाकायदा वेबसाइट पे डालते हैं, उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखते हैं। बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं तरह तरह के, तो हम किसी सुझाव को डिस्कार्ड नहीं करते। हम हर सुझाव को पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखते हैं, अनबायस्ड तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं जिसमें भी लार्जर हित हो सोसाइटी का और सोसाइटी उसको ठीक से एक्सेप्ट कर रही है, तो जिनके ऊपर कानून लगता है उनको भी हम कन्विंस करते हैं। अभी इतने बड़ी संख्या में, अभी आपको मैंने बताया ना 1000 शेफ़ आए, यानी वरना तो अगर केवल अपने बिजनेस और ये सब एंगल से ही देखें तो आदमी के लिए उसको कन्विंस होना इस तरह के कार्यक्रम के लिए बहुत मुश्किल है। फिर हम साथ में विज्ञान का भी प्रयोग कर रहे हैं। जो बचा कुचा तेल है उसको भी इकट्ठा करके और उसको भी जो है वेल्थ के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। तो इट्स वी आर वर्किंग एट मल्टीपल फ्रंट्स। इट्स नॉट ओनली द हेल्थ एस्पेक्ट बट एवरीथिंग। और फूड से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होगा किसी भी व्यक्ति के लिए? सर, जैसे फूड सेफ्टी की बात है तो फूड सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए। अगर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारे पास वो फूड आ रहा है तो हाउ न्यूट्रिटिव इट इज़, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे फार्मर्स के पास चैलेंजेस हैं। नहीं देखिए, ये तो हमने किसी ने थोड़ी कहा कि चैलेंजेस ख़त्म हो गए। चैलेंजेस अगर ना होते तो फिर 70 साल के बाद अभी भी प्रॉब्लम्स तो बची है ना। लेकिन एक एक प्रॉब्लम को गहराई से प्रधानमंत्री मोदी जी पहचान रहे हैं। उन्होंने अगर स्वच्छता की बात की तो खाली बात नहीं की, उन्होंने 12 करोड़ टॉयलेट बना दिए, 6 लाख विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया। उन्होंने अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की तो 35-38 करोड़ लोगों को खाता भी दे दिया। और करप्शन की बात की तो उन्होंने सारा खाते में पैसा सीधा पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लीन एनर्जी की बात की तो मिलियंस ऑफ LED बल्ब लग गए देश में। उन्होंने बहनों के स्वास्थ्य को जो चूल्हे से दुष्प्रभाव होता था उसकी बात की तो 8-10 करोड़ आप ही से पैसा मांगा, आपसे कहा सब्सिडी छोड़ो, और आप ही के पैसे से गरीब आदमी को जिसकी ज़रूरत थी उसका लाभ। तो प्रॉब्लम को अगर समझा जाए, उसकी 18,000 गांव क्या पहले लोगों को नहीं पता था कि वहाँ बिजली नहीं है। लोग कहते थे वहाँ जाएंगे कैसे, सड़क नहीं है, खंबा कैसे पहुँचेगा, वो पहाड़ी पर है, वो आदिवासी इलाके में है, वहाँ तो बिजली का तार नहीं जा सकता। वहीं पर 1000 दिन में प्रॉमिस किया था, 989 दिन में प्रधानमंत्री जी ने गाँव में बिजली पहुँचा दी ना, अब घर घर में भी जा रही है। तो प्रयास किया जाए तो इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। एक बार लोगों को समझ में आ जाए कि सरकार की नीयत ठीक है। अब इसमें हमारा किसी का कोई अगर आप मान लीजिए भोजन ठीक करोगे तो मेरे स्वास्थ्य को थोड़ी फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो आप ही को होगा। आप ही अपने को अच्छी तरह मेंटेन करके रखोगे जैसे अभी रखा हुआ है आपने। Assess everything very objectively and we should always keep the interest of the people in mind. कभी कभी सख्त कानून होता है, कानून भले ही सख्त होता है लेकिन वो जनता के इंटरेस्ट में होता है। प्रधानमंत्री जी ने कितने कड़े फैसले कई किए, लेकिन वो क्योंकि जनता के हित में थे, किसी भी आदमी ने भारत के अंदर उनके ऊपर ये उंगली नहीं उठाई कि उनकी बदनीयती है उसकी। सबने कहा ठीक है, कड़ा था, मेरे को भी तकलीफ हुई, मुझे भी लंबी चौड़ी लाइन में लगना पड़ा, लेकिन सबने कहा वो इट इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सर, ये जो फूड एडल्टरेशन करते हैं उनके लिए कुछ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का चला था और कुछ स्टेट्स ने उसे इम्प्लीमेंट भी करा। इतना ज़्यादा डिटेल तो ये बताएंगे, लेकिन आज तो इतनी बात बताओ ना सबको ठीक से खाना बढ़िया।